ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਇਹ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਸਰਾਏ ਖਾਸ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 327 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦਾ ਦਿਨ। ਉੱਚੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਪੰਵਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਲਈ ਖੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ 327 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰੇਡ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਹ 327 ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰੇਡ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਪੰਵਰ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਪਲਾਟੂਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਪਲਾਟੂਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ, ਪਲਾਟੂਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਖਨਜੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਲਾਟੂਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਲਾਟੂਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਮੀਤ, ਪਲਾਟੂਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੰਜੇ, ਪਲਾਟੂਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਿੰਕੂ ਅਤੇ ਪਲਾਟੂਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਵਿੰਦਰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਰਹੇ। सुपुत्र श्री परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने धर्म से प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारत की सरकार जो कि संवैधानिक रूप से बनाई गई है उसका सच्चे मन से हितैषी रहूंगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूंगा। 44 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਧੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 44 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। सर मैंने ये फोर्स पिछले साल ज्वाइन किया था सर। आज 8 जून अब हमारा पीओपी का दिन है सर। आज हमारे 1 साल की ट्रेनिंग सर पूरी हुई। तो क्या सीखा आपने इस ट्रेनिंग में जो है? सर इस ट्रेनिंग के दौरान हमने अलग अलग चीज़ें सीखी है सर, जैसे कि बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, किस तरह से शरीर को जो है फिट रखा जाता है सर। फिजिकल ट्रेनिंग जो है सर बहुत ही हार्ड थी। इसके अलावा वेपन के बारे में भी सर सीखा, वेपन हैंडलिंग के बारे में, भिन्न भिन्न हथियारों के बारे में हमने सबने सीखा सर। मैं इस ट्रेनिंग सेंटर में मैं अकेला बिहार से था। यहाँ आकर के कई राज्य के लोगों के साथ मिला, बढ़िया लगा मुझे। एक पूरा भारत एक समा रखा है बल में और मुझे
ट्रेनिंग के दौरान फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट की शिक्षा मिली और वेपन हैंडलिंग बहुत ही अच्छा रहा मेरा। और यहाँ के बहुत उस्तादों ने बहुत ही प्रोत्साहित किया। कई बार पीटी के दौरान चोट लग जाती थी या फिर कभी दर्द होता था, उस्तादों ने बहुत सहयोग किया। जब से सीआरपी ज्वाइन करी सर, तब से इस चीज़ का अनुभव हुआ कि टीम वर्क काम कैसे किया जाता है। इस चीज़ का हम सीओ सर ने बहुत बार ब्रीफिंग के दौरान सिखाया गया है। टीम वर्क काम करना चाहिए और इससे हमें बहुत कुछ मिलता है जब टीम वर्क काम करते हैं तो अपन। और सिविल लाइफ फौजी लाइफ से बहुत अलग है। आने के बाद हमने सिविल लाइफ को फौजी लाइफ में चेंज किया है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। प्रशिक्षण के दौरान हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी, जैसे फायरिंग है, ड्रिल है और बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, युद्ध कला, भूमि कला का अच्छा प्रयोग करना। और एक सिपाही के तौर पर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए हमने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, अपने उस्तादों को, अपने इंस्ट्रक्टर को, जिन्होंने हमें इस बल के इतना काबिल बनाया कि हम आज के दिन आन बान शान पर मर मिटने के लिए तत्पर रहेंगे। 44 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੰਜੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਬੈਸਟ ਟਰਾਫੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਵਿੰਦਰ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਿੰਕੂ, BOAC ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੰਜੇ, इंडोर विच कांस्टेबल आशीष कुमार ਅਤੇ आउटडोर विच विजय कुमार चौधरी के नाम ये ट्रॉफी रही। हमने जब ज्वाइन किया था तो सिविल जनता से और फ़ौज से बिल्कुल अलग थे और फ़ौज में आके बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले डिसिप्लिन आता है, तो सिविल जनता से जो अलग करता है वो है डिसिप्लिन। तो एक फ़ौजी आदमी का जो चाल ढाल और जो डिसिप्लिन होता है वो सबसे पहले पड़ाव में हमने ये सीखा। फिर उसके बाद 22 वीक तक हमने फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ और इंडोर क्लासेस इन पे हमारे इंस्ट्रक्टर और गुरुजनों द्वारा शिक्षा दी गई, जिससे कि हमने 22 वीक का सेमेस्टर पास किया। और उसके बाद जंगल कैंप, जिसमें जंगली जो आंतरिक सुरक्षा में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहाँ पर हमें सेवा करने का मौका मिलेगा, वहाँ पर जो बाधाएं आती हैं उनको पूर्ण करने के लिए जो हमें शिक्षा दी गई। फिर उसके बाद जो भी है वेपन्स, हथियार, वो हमें जो दुश्मन पर कारगर और आजकल ऑटोमेटिक जो हथियार जो हमें मदद करते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए, उन सभी का प्रशिक्षण दिया गया। जब से मैंने इस बल को ज्वाइन किया तो ये मेरी लाइफ में एक न्यू चेंज आया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखा। सिविलियन से बहुत ही अलग है ये फ़ौजी लाइफ। और दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमने अपने फ़िज़िकल को इम्प्रूव किया, अच्छी तरह की वेपन ट्रेनिंग ली, जिससे कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी अच्छी तरीके से निभा सकें। और जब भी हमारी ज़रूरत देश को पड़ेगी तो हम उसके लिए हर पर तैयार हैं। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਪਵਰ ਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। दीक्षांत समारोह क्या होता है, इसका क्या महत्व है, ये बल में जितने भी अधिकारी और कार्मिक बल को ज्वाइन किए हैं, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। हमने भी 1986 में ज्वाइन किया कि 1987 में इसी तरह से एक भव्य समारोह में हमारी भी पासिंग आउट परेड हुई। ये पल बहुत ही मेमोरेबल होते हैं। और जो हमारे 327 नवरक्षी हैं, जिन्होंने आज तिरंगे के सामने तिरंगे की शपथ लेकर संविधान की रक्षा, देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने की शपथ ली है। ये बदलाव जिंदगी का बहुत बड़ा बदलाव होता है। जन्म के पश्चात विधाता उसको किस जगह लेके जाता है, उसमें जो आप सर्विस ज्वाइन करते हैं, आपकी जिंदगी का बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है। खुशी है हम सबको कि आप लोगों ने बल को ज्वाइन किया। इस बल में मैं आपका तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ DIG ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। प्रशिक्षण महानिदेशालय के द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान इन्हें युद्ध कला के प्रत्येक क्षेत्र की
उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की गई है, जिससे ये कठिन से कठिन क्षेत्रों में भी अपनी ड्यूटी का निर्वहन सही प्रकार से कर सकेंगे। इन्हें शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी एक मजबूत सैनिक बनाया गया है। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण तथा अत्याधुनिक हथियारों जैसे AK-47, इंसास राइफल, LMG, X-95, UBGR, CGRR मोटर से अपने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेजने का अभ्यास भी करवाया गया है। मैं सबसे पहले तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि इस देश के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल का एक सदस्य बना, और दूसरा यह है कि इस ATC में आने पर मैं अपने आप को और भी खुशनसीब समझता हूं। यहाँ का जो ट्रेनिंग स्टाफ है बहुत अच्छा था। CO सर की निर्देशन में हमें बहुत अच्छे सीखने को मिला। सीनियर्स का रेस्पेक्ट करना, हमारे जो फील्ड क्राफ्ट में काम आने वाले, फील्ड में काम आने वाले टैक्टिक्स और पर्सनल वेपन जैसे इंसास AKM के साथ साथ हमें सपोर्ट वेपन MMG, CGRL, LMG वगैरह के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया। हमारे रहन सहन और विश्वास को एक ऊंचाई बुलंदी प्रदान की इस ATC ने। मैं अपने आप ਨੂੰ बहुत खुशनसीब मानदा कि मैं देश ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਅੰਤਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ CRPF, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ATC ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ CO ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਬੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਫੀਲਡ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੋर्ट मिली ਆ, घर वर्गा माहौल मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, CRPF देश और दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। शुरू से ही मुझे एक फौजी बनने का सपना था, इसलिए मैंने 2013 में NCC भी ज्वाइन की थी। 2015 में राजपूत परेड में भी शामिल हो चुका हूँ। उसके बाद हमने बहुत शानदार मेहनत की, जोरदार मेहनत की और मैं CRPF बल में भर्ती हुआ। यहाँ आकर हमने बहुत ही कुछ सीखा, ट्रेनिंग की। हमारे जो ट्रेनिंग स्टाफ था उन्होंने बहुत शानदार हमें ट्रेनिंग दिया है, चाहे जंगल कैंप हो, फील्ड क्राफ्ट हो, बैटल क्राफ्ट हो, सभी तरह से हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में निपटने के लिए एक तरह से मजबूत फौलादी फौजी बनाया है, ताकि हम देश में आंतरिक सुरक्षा को बढ़िया से बढ़िया सुरक्षा कर सके। ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਡਰਿਲ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਹ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ CRPF ਦੇ ਬੈਂਡ ਦਸਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। सर
आज नव आरक्षी जो हैं आपके फोर्स में शामिल हुए, क्या संदेश देना चाहिए आप उनको? आपने देखा आज ये कितना भव्य इनका परेड का आयोजन किया गया, और ये सब जो जवान हैं हमारे, ये देश का फ्यूचर है, इन्हीं के हाथों में देश की सुरक्षा है। और जितना हम इनको मजबूत करेंगे ट्रेनिंग करा के और उनका मनोबल बढ़ाएंगे, उतने ही ये हमारे लिए अच्छी सफलता हासिल करेंगे ग्राउंड के अंदर। और जो भी देश की एकता अखंडता के लिए चुनौती पैदा करेंगे, उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे ये जवान।